Assalamu alaikum, my dear learners. Hope and pray you are all well off. So, in yesterday's video, we talked about the first 5 quatrains of the poem, The Tale of Custard the Dragon, jotted down by Ogden Nash. So, before moving on to the next stanzas, let me precisely recap the first 5 stanzas. So, what did we learn is that a girl named Belinda was living in a little white house with her pets, a cat, a dog, a mouse, and a dragon. The black kitten is named as Ink, and the grey mouse is called Blink. The little yellow dog is called as Mustard, while as dragon is called Custard, because Belinda considered him a coward. Then we also talked about how mighty the dragon is. There were spikes on his top, scales underneath, and his mouth was like a fireplace chimney. His chimney was like a nose, etc., etc. And all the other characters boost their own courage and bravery, except this dragon who always cried for a cage. Belinda often tickled and teased him. Others called him Percival, and they all were sitting in the wagon and making fun of him because they thought dragon was a coward. Now, let's see the rest of the poem. Belinda giggled till she shook the house, and Blink said rack, which is giggling for a mouse. Ink and Mustard rudely asked his age, when Custard cried for a nice safe cage. And all of you know that all the other characters were laughing at this dragon, and this Belinda, she was laughing in a silly way. She laughed in a silly way, and she laughed so much that the whole house seemed to be trembling, seems to be swaying. ठीक है, यानी बेलिंडा ठा ठा के पागलों की तरह हंसने लगी, यानी ऐसे हंसने लगी जैसे लग रहा था ये हाउस बिल्कुल हिल रहा है. And Blink said rank. Blink also giggled in his own way. This mouse, Blink mouse का नाम होता है, ठीक है. Rack, which is giggling for a mouse. और ये जो रैक है ये इसकी giggling sound है. This rack is the giggling sound of mouse. Ink and Mustard rudely asked his age. ये जो Ink और Mustard था, यानी ये इसका मजाक उड़ा रहे थे, ये इसको पूछ रहे थे what's your age, and they were asking these things so impolitely and so rudely. ठीक है, in a way ये इसको बोल रहे हैं कि आप इतने grow up हो गए हैं, फिर भी अभी भी आपका जो behavior है ये cowardly, your behavior is cowardly, you are childish in your habits. That's why they were asking him these questions like what's your age, when Custard cried for a nice safe cage. But Custard टस से मस नहीं होता था, वो खाली एक ही बात बोलता था, अरे भाई मुझे सेफ्टी चाहिए, I need a cage. Suddenly they heard a nasty sound, and Mustard growled, and they all looked around. Meow, cried Ink, and oh, cried Belinda, for there was a pirate climbing in the window. Abruptly, they heard unpleasant sound. Nasty means bad or unpleasant sound. All of them, Belinda, Ink, Blink, Mustard, they heard some noises. They heard उन्होंने एक नाखुशगवार आवाज सुनी. And Mustard growled. This little dog, yellow dog Mustard, he also made a low threatening sound. And they all looked around. और अब ये इधर उधर देखने लगे, चारों तरफ देखने लगे. They looked at every nook and corner. Meow, cried Ink, and ooh, cried Belinda. यानी Ink और Belinda also cried out. क्यों? For there was a pirate climbing in the window. क्योंकि उन्होंने एक robber को देखा था. They had seen a robber and he was climbing through the window. यहाँ पे देखिए आप irregular rhyme scheme इसकी. Belinda, window. Window means
ये वेरेंडा के लिए इस्तेमाल होता है, विंडो के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पे बेलिंडा के साथ इसको राइम करने के लिए उसने विंडा का इस्तेमाल किया है। ठीक है। पिस्टॉल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टॉल इन हिज राइट, जब उन्होंने एक रॉबर को देखा और पायरट को देखा, ठीक है, जो कि आया था, ठीक है, वो अंदर गुस्सा था। दैट्स वाई दे स्टार्ट क्राइंग। आदू ने ग्राउल शुरू किया, आदू ने म्याऊ किया, आदू ने ऊ किया। तो ये जो पायरेट होता है, पायरेट एक्चुअली किसको हम बोलते हैं? पायरेट इज एक्चुअली अ पर्सन who sails in a ship and attacks other ships in order to steal from them। ठीक है। और अब इस पायरेट की डिस्क्रिप्शन देखो, पिस्टोल इन हिज राइट लेफ्ट हैंड, पिस्टोल इन हिज राइट हैंड, यानी ही हैड पिस्टोल इन बोथ द हैंड्स। लेफ्ट हैंड में भी इसको पिस्टोल होता है, राइट हैंड में भी इसको पिस्टोल होता है। एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलेस ब्राइट। और इसने क्या किया था? ही वॉज होल्डिंग अ लिटिल स्वर्ड in his teeth। cutlass actually, cutlass means short curved sword। ये बहुत ज्यादा तेज होते हैं, पायरेट्स के पास होते हैं ये कटलस, यानी इसने दांतों में इस कटलस को भी रखा था। इट वॉज ब्राइट, ठीक है। हिज बियर्ड वॉज ब्लैक, इसकी दाढ़ी भी काली होती है। वन लेग वॉज वुड एंड हिज वन लेग वॉज मेड ऑफ वुड, एक टांग इसकी लकड़ी की थी। इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट मींट नो गुड, साफ दिखाई दे रहा था इसकी जो इंटेंशन है, ये बिल्कुल इवल इंटेंशंस है, इसके इरादे अच्छे नहीं है, ये जरूरी डैमेज करने के लिए आया है, इसके कुछ विक्ट पर्पस है, ये बिल्कुल हार्म पहुंचाने के लिए आया है, साफ दिखाई दे रहा था। Belinda paled and she cried, "Help! Help!" And on seeing the robber, Belinda got frightened. She got flustered and she paled. इसका रंग ही बदल जाता है। And she cried, "Help! Help!" और ये she started screaming, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। But Mustard fled with a terrified yell. और जो ये मस्टर्ड था, he fled away with a frightened scream, यानी वो भाग गया वहां से, इतना डर गया कि वो चीखने लगा, चिल्लाने लगा। yelp, terrified means frightened, yelp means scream, ठीक है, चीखा, चिल्लाया और वहां से भाग गया। Ink trickled down to the bottom of the household। और ये जो इंक था, trickled means to go or move slowly, आहिस्ता आहिस्ता जाना या चलना। अब ये जो इंक था, ये आहिस्ता आहिस्ता इस हाउस होल्ड के बॉटम में चला गया, यानी ही हाइड्स हिमसेल्फ, ठीक है, यानी हाउस होल्ड में जो चीजें होती, जो आइटम्स होते, उनके नीचे ये छुप गया। एंड लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रेटेजिकली माउस आउट। अब इस माउस ने भी सोचा, चलो यही अच्छा है मेरे लिए, मैं भी अपने आप को हाइड करूं, ठीक है। तो ये कहां पे चला गया? ही गॉट इनटू हिज होल। बट कैसे चला गया अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए? ही टैक्टिकली माउस होल्ड, स्ट्रेटेजिकली मींस टैक्टिकली, बड़ी स्ट्रेटजी के साथ, ठीक है। बट अब जंप्ड कस्टर्ड स्नॉटिंग लाइक एन इंजन। लेकिन सभी कवर्ड्स निकले, सभी डरपोक निकले, लेकिन बट दिस कस्टर्ड jumped up at once, snorting like an engine, and he was breathing like an engine, ठीक है। snorting means harsh grunting sound, वो फनकारना, ठीक है, यानी बट अब jumped custard snorting like an engine, इंजन की तरह ये वो शोर कर रहा था। clashed his tail like irons in a dungeon। डंजन का मतलब क्या होता है? अ डार्क अंडरग्राउंड प्रिजन। clashed means struck, ठीक है, यानी when he struck his tail angrily, it made the sound. What sound it made? It made sounds like the iron chains of prisoners, ठीक है, वैसी आवाज निकाली उनने, जैसे ऐसी आवाजें की मानो जब किसी कैद खाने में लोहे की जंजीरों में जब कोई बंदा कसा हुआ होता है ना, वो जब वो कैदी फिर चलता है तो वो जो आवाजें आ रही है उसी को बोलते हैं आयरन्स इन ए डंजन, यानी यहाँ पे सिमली का इस्तेमाल करता है, ऊपर भी इसने सिमली का इस्तेमाल किया है, ठीक है। विथ ए क्लैटर एंड ए क्लैंक एंड ए जैंगलिंग स्कर्म। और जब व्हेन ही ट्विस्टेड हिज टेल, जब इसने अपनी टेल को ट्विस्ट किया, मरोड़ा, एंड इट मेड अ क्लैटरिंग साउंड, ठीक है, एंड इट मेड ऑल्सो अ क्लैंकिंग साउंड एंड अ जैगलिंग साउंड, ठीक है। ये तीनों आवाजें
क्लैटरिंग, खटखट, ठीक है। सो क्लैटरिंग मैं बोलूंगा, क्लैंग भी बोलूंगा, इनकी मीनिंग। क्लैटर का मतलब होता है टू मेक कंटिन्यूअस लाउड नॉइजेस बाय हिटिंग हार्ड ऑब्जेक्ट्स अगेंस्ट ईच अदर, ठीक है। सो क्लैंक का मतलब क्या होता है, टू मेक अ शॉर्ट लाउड नॉइज लाइक दैट ऑफ अ मेटल ऑब्जेक्ट्स हिटिंग ईच अदर। और जैंगलिंग का मतलब होता है द नॉइज ऑफ मेटल हिटिंग मेटल। जब आप एक मेटल को दूसरे मेटल से हिट करते फिर जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसको बोलते हैं जैगलिंग साउंड, ठीक है। स्कर मीन्स रिगल, यानी स्कर मीन्स टू ट्विस्ट अबाउट लाइक अ वर्म, ठीक है। यानी जब आप एम्ब्रेस्ड होते, परेशान होते और फिर बेचैनी से आप वो अपने आप को मरोड़ते, ठीक है, ठीक है। ही वेंट एट द पायरेट लाइक अ रॉबिन एट अ वर्म। अब ये मतलब कोशिश कर रहा था मैं कब आ जाऊं बाहर, और जो ही ये बाहर आया ही पाउंस्ड ऑन द पायरेट, यानी ये बिल्कुल इस पे झपट पड़ा। कैसे? लाइक अ रॉबिन एट अ वर्म, सिमिली का इस्तेमाल करता है। ऐसे मानो जैसे एक रॉबिन, एक परिंदा एक कीड़े पे जब जैसे झपट पड़ता है ना, वैसे ये भी इस पे झपट पड़ा, यानी ही अटैक्ड हिम। द पायरेट गेप्ड एट बेलिंडा's ड्रैगन। द रॉबर कुड डू नथिंग। उसके पास कोई चारा, उसके पास कोई रास्ता है ही नहीं वो एस्केप करे। द पायरेट गेप्ड, इसने क्या किया, इसने वो घूर घूर के देखने लगा इस बेलिंडा के ड्रैगन की ओर। गेप्ड मीन्स टू स्टेयर, टू स्टेयर बाय वाइडनिंग योर माउथ ओपन। जब आप मुंह खुला करके किसी की तरफ देखते हैं ना, उसको बोलते हैं गेप करना, ठीक है। एंड गल्प्ड सम ग्रॉग फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैन। जब वो बस घूरता हुआ देख रहा था इस ड्रैगन की तरफ, उसके बाद उसने क्या किया, ही टुक आउट अ बोतल ऑफ वाइन फ्रॉम हिज पॉकेट एंड गल्पड इट। गल्पड मीन्स स्वेलो, निगल लेना, ठीक है। सम ग्रॉग, ग्रॉग मीन्स ये एक किस्म की शराब है, ठीक है, रम, स्पेशली रम। फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन, यानी फ्लैगन का मतलब होता है इट्स अ कंटेनर फॉर लिक्विड, जिसमें वो रखते शराब। और फिर इसने इस फ्लैगन से ये शराब निकाली और फिर इसी को निगल लिया। ही फायर्ड 2 bullets बट दे डिडंट हिट। इसने 2 गोलियां चलाई लेकिन इनमें से कोई उसको नहीं लगी। दे ऑल मिस्ड एंड कस्टर्ड गॉबलेड हिम एवरी बिट। अब कस्टर्ड सॉरी अब सो हाँ अब कस्टर्ड ने क्या किया, इस ड्रैगन ने क्या, ही कॉट होल्ड ऑफ हिम एंड एट hurriedly and noisily. In a way, he killed the pirate, the robber, and Custard gobbled him. Gobbled का मतलब होता है to eat hurriedly and noisily. हड़प कर देना, यानी इसको हड़प कर दिया, निगल लिया। Blenda embraced him. ओहो, अब Blenda आई। She gave him a hug. She cuddled him. ठीक है, इसको बड़े प्यार से गले लगाया इसको। Mustard licked him, और मस्टर्ड ने इसको चाटना शुरू किया। लिक्ड मीन्स चाटना, द वे यू लिक यूर प्लेट्स आफ्टर फिनिशिंग द फूड, ठीक है, वैसे मस्टर्ड इसको चाटने लगा। नो वन मोर्नर फॉर द पायरेट विक्टिम। किसी ने कोई दुख नहीं बहाया। नोबडी एक्सप्रेस द ग्रीफ फॉर द पायरेट। पायरेट का क्या हुआ, जो अभी विक्टिम बना था, जो शिकार हुआ था, किसी ने कोई मातम नहीं किया, किसी ने दुख नहीं बहाया, ठीक है। इक एंड ब्लिंक इन गिली डिड जायरेट। और इक और ब्लिंक के जो बहुत ज्यादा खुशी मना रहे थे। गिली मीन जॉय, डिड जायरेट, यानी दे स्टार्ट डांसिंग अराउंड द ड्रैगन, जिसने इस अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट, जिस ड्रैगन ने पायरेट को अभी अभी गल्प किया था, ठीक है। तो ये उसी ड्रैगन के इर्द गिर्द चक्कर काट रहे थे। जायरेट मीन्स डांस करना, रिवॉल्व, ठीक है। बट प्रेजेंटली अप स्पोक द लिटिल डॉग मस्टर्ड। इतना होने के बावजूद भी आफ्टर दैट द लिटिल डॉग मस्टर्ड स्पोक अप। व्हाट डिड ही से? I have been twice as brave if I hadn't been flustered. ओहो, आप मुझे क्या बोल रहे? मैं दुगना बहादुर साबित कर सकता था अगर मैं फ्लस्टर्ड नहीं होता। If I was not worried, if I was not confused, if I was not upset and nervous, अगर मैं परेशान नहीं होता ना, अगर मैं कंफ्यूज नहीं होता ना, तो मैं 2 गुना बहादुर साबित कर सकता था। एंड अप सपोक इंक एंड अप सपोक ब्लिंक, और इंक और सपोक ने भी यही चीज की। They did the same thing. We would have been 3 times as brave, we think. ओहो, हम 3 दुगना बहादुर साबित कर सकते थे, लेकिन हम भी थोड़े से
परेशान थे, कंफ्यूज थे. एंड कस्टर्ड सेड आई क्वाइट एग्री. कस्टर्ड ने कुछ नहीं कहा, उसने कहा हाँ, आई एम विथ यू, आई एग्री विथ यू. लाइक ही मेंटेन्ड हिज यूजुअल काम दैट एवरीबडी इज ब्रेवर देन मी, कि आप में से हर एक मुझसे ज्यादा बहादुर है. Belinda still lives in her little white house with her little black kitten and her little grey mouse. So this is the repetition of the first. This is the repetition of the same. The first stanza, ठीक है, उनको रिपीट किया गया. और इस लिटरेरी डिवाइस को हम रिफ्रेन बोलते हैं. यहाँ पे रिफ्रेन का इस्तेमाल किया है राइटर ने. तो रिफ्रेन क्या होता है? रिफ्रेन होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स फॉर्मिंग अ फ्रेज और सेंटेंस and repeated at regular intervals in a poem, usually at the end of a stanza. जहाँ पे कुछ स्टेंजाज या कुछ फ्रेजेस रिपीट होते हैं लेकिन आमतौर पर लास्ट पे, उसको हम बोलते हैं रिफ्रेन. तो कुछ नहीं बदला था. इतना होने के बावजूद भी, in spite of this encounter, they should have learned the lesson, but they did not learn anything. Nothing has changed. बेलिंडा अभी भी उसी लिटिल व्हाइट हाउस में रहती है, उन ब्लैक किटन के साथ, उस ब्लैक किटन के साथ, लिटिल ग्रे माउस के साथ, और येलो डॉग के साथ, और उनकी वही लिटिल रेड वैगन है, एंड हर रियली और ट्रूली और लिटिल पेट ड्रैगन. सो दिस कॉल्ड रिफ्रेन. रिपीट हुआ है वही पहला वाला सेंटेंस. बेलिंडा इज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स. बेलिंडा, उसकी हैबिट नहीं गई, वो अभी भी बोल रही है कि आई एम as brave as barrel full of beers. And ink and blank chase lions down the stairs. जो अभी भी बोल रहे we can chase the lions down the stairs. मस्टर्ड अभी बोल रहा है मैं इतना ब्रेव हूँ जितना एक टाइगर रेज में ब्रेव, जब टाइगर गुस्से में होता है वो कितना खतरनाक होता है, उतना बहादुर में भी हूँ. बट कस्टर्ड कीप्स क्राइंग फॉर अ नाइस सेफ केज. ठीक है, नोबडी केयर्स फॉर कस्टर्ड. और वो अभी भी इल्तिजा कर रहा है मुझे बस अपना महफूज पिंजरा दिया जाए. ठीक है. सो दिस इज योर पोम. सो देयर आर सम अदर like the theme of the poem. So what is the theme of the poem? Now we understand that one must not look down upon others. We must not consider someone or something lesser or inferior, because Allah has created everyone and everything with some special purpose. Moreover, it also teaches us that we must never be boastful about our actions, physique and beauty. Some other literary devices has been used. Yesterday we talked about oxymoron. There is the use of onomatopoeia. So what's onomatopoeia? When a word is used to describe a sound is called onomatopoeia. यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे रैक की साउंड, इसने जो गिगलिंग साउंड फॉर ए माउस, रैक, ये भी ओनोमेटोपिक वर्ड, यानी जो ही वर्ड बोलते हैं तो हमारे माइंड में इसकी आवाज आती है. सिमिलरली यहाँ पे आप देख सकते हैं विद ए क्लैटर एंड ए क्लैंक एंड ए जैगलिंग स्कर्म. क्लैटर, क्लैंक, ये भी साउंड प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, इसको हम बोलते हैं ओनोमेटोपिया, जहाँ पे वर्ड रिप्रेजेंट साउंड करे. ठीक है, लाइक हिस, बज. ठीक है, तो इसी तरह से सिमिलीज का भी इस्तेमाल हुआ यहाँ पे, लाइक बेलिंडा एज ब्रेव एज फुल ऑफ बियर्स, माउथ लाइक ए फायर प्लेस, मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन ए रेज, custard snorting like an engine clashed his tails like irons in a dungeon, he went at the pirate like a robin at a worm. इस तरह से कुछ इमेज का भी इस्तेमाल हुआ यहाँ पे, लाइक माउथ फॉर अ फायर प्लेस, चिमनी फॉर नोज, बैरल फुल ऑफ बियर्स, brave as tiger in the rage, he went at the pirate like a robin at a worm. So I hope you have understood the poem. I think I should stop here. Thank you. Bye bye. Take care. Allah Hafiz.